Hello everyone. Today we are going to study the first chapter of the class 11th, that is the living world. So what is this living world? This living world refers to the environment in which we live in. It includes all the living things, whether they are visible like plants, animals, or we human beings, or the things which are invisible like the bacteria or microbes residing in the environment, like any type of environment like in lakes, mountains, forest, hot spring, or in the mountains, anywhere. Okay. The next term in this chapter is the biodiversity. So what is this biodiversity? The biodiversity is the number and variety of living organisms present on the earth, like plants, animals, or the bacteria, human beings, anything. So this biodiversity play important and crucial role for maintaining the health and prosperity and the stability of the planet ecosystem. So this biodiversity and the variation uh, of this biodiversity have three main levels. That is the genetic biodiversity, means variation in the genetic diversity helps in the population to adapt to the changing environment. And the next is the species diversity. It refers to the species diversity refers to the number of different species within a particular area or ecosystem. So high species diversity indicates a healthy ecosystem. Next is the ecosystem biodiversity. What is this? This is the ecosystem, means the variety of habitats, communities in the environment. So this ecosystem such as the forest, wetland, deserts, this ecosystem diversity is crucial for the supporting of the well-being of the human and prosperity of the human being. So the another term is the nomenclature. So what is this nomenclature? Nomenclature is the process of giving name to a particular organism, particular living organism. Okay, नामकरण करना है ताकि वो all over the world एक same नाम से बुलाया जा सके. ठीक है? In order to avoid the confusion, a universal name is given to a particular organism. For example, we will take mango. What's the scientific name of the mango? What's the scientific name of the mango? Mango is called as the, let me write, mango is called as Mangifera indica. Okay. Mangifera indica is the scientific name of mango. So all over world it is called as the Mangifera indica. Otherwise अगर हम इसे एक common name नहीं देंगे तो कितना confusion होगा. हमारा diversity, language diversity is so huge, so diversified. हम अगर इंडिया में ही देख ले तो इतने सारे भाषा है, पंजाबी, हिंदी, तमिल, तेलुगु. ओके, सबका अपना अपना भाषा, अपना अपना मैंगो का अपना अपना नाम है. तो इतना कंफ्यूजन हो जाएगा. अदर कंट्रीज में जाइए तो अलग कंफ्यूजन हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन अ कॉमन नेम इज गिवन इन. तो what is this nomenclature? Here it is written, the process of naming living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. ठीक है, नेमिंग कर दिए. नेमिंग के बाद एक दूसरा टर्म है आइडेंटिफिकेशन. व्हाट इज दिस आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन मींस डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिजम्स करेक्टली. पहले उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, पहले उसको जानेंगे हम कि कैसा है वो ऑर्गेनिजम्स, उसका कलर कैसा है, उसके लीव्स कैसे है, प्लांट्स कैसे है, वो किस टाइप्स का है. ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो उसका नाम देंगे. ठीक है. सो first identification is done, then we go to nomenclature. Okay, first identification then nomenclature. So identification कर लिए कि describe कर लिए organism correctly in order to give it name. Nomenclature is only possible when identification is done. Great, understand? So the next, the universal principle of the nomenclature is the binomial nomenclature. What is the binomial nomenclature means? Two components. Bi means two. Okay? So two components here involved in the
binomial nomenclature. This binomial nomenclature is given by the scientist Carolus Linnaeus. Okay, so the two components in this binomial nomenclature is, first one is the generic name is given, generic name, and the second one is the specific epithet, specific species epithet. Okay, so two binomial nomenclature, a universal principle accepted, which was given by the Carl Linnaeus. It includes the generic name and the species epithet. For example, we take tiger. This is the tiger. Its scientific name is, what's the scientific name? Tiger. One second. That is the Panthera leo. Panthera tigris. Sorry, it's a tiger. Panthera tigris. Panthera tigris. So this one is the generic name and this one is the species name. This is the generic name and this is the Panthera is the generic name and the tigris is the species epithet. Okay, so naming a rule is the binomial nomenclature. Next we come to the what's the universal rule of the nomenclature. Next we are going to study that. Next slide. This is the universal rule of nomenclatures. What are the some rules? Here it is written, it should be in italics. If it is printed, it should be in italics. And if it is in written form, like if you write in your copy or in anywhere, then the biological name should be written. Then the generic name is first underline and then species name is another underline. Just I have shown in the previous slide by writing the name of the mango. The first word of the biological name, here it is written, the first word of the biological name is the genus, while the second word denotes the specific epithet. Okay. Then the first word, the genus starts with the capital letter. Mention it, capital letter. जैसे कि हम लिखे थे अभी, आप एग्जाम्पल लिए थे पैंथेरा टिग्रिस का, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस. So P, this is the genus and this is the species name. दे बोथ आर अंडरलाइन सेपरेटली. ठीक है, अगर आप इसे प्रिंट वर्जन में लिख रहे हो तो ये इटैलिक्स में होना चाहिए. ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज शुड बी इन कैपिटल लेटर एंड द स्पीसीज एपिथेट शुड बी इन द स्मॉल लेटर. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द हैंड रिटन होगा तो सेपरेटली अंडरलाइन होगा, प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा. नेक्स्ट, नाम लिखने के बाद उसके जो एब्रिविएटेड बायोलॉजिकल फॉर्म में जो नाम लिखते हो तो एक उनके जो साइंटिफिक जो भी डिस्क्राइब किए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया मैंजीफेरा इंडिका लिन. व्हाट इज दिस लिन? दिस इंडिकेट द डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस. ओके, सो दिस इज द rule, universal rule of the nomenclature. Now we come to the next, is it possible to practically give the scientific name of all living organism? Do you think? So huge variety of biodiversity is there. इतने सारे species है, आप सोच भी नहीं सकते, इतने सारे वैरायटी ऑफ स्पीसीज है. क्या सबका इंडिविजुअल एक एक नाम देना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. सो व्हाट टू डू? सो इट्स नियरली, व्हाट्स इट्स नियरली इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज द क्लासिफिकेशन करेंगे हम. सो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द grouping of living organisms. grouping करना living organism in a particular categories में, in a convenient categories में, so that they
मीन्स द कैटेगरीज विच आर द इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ऐसा ग्रुप, जैसे जो एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि स्कूल में वी आर इन अ स्कूल, चिल्ड्रंस आर ग्रुप्ड इन अकॉर्डिंग टू देयर एज। ठीक है, क्लास 1 के बच्चे एक क्लास में रहते हैं। ठीक है, एक एज ग्रुप के बच्चे, एक 10th क्लास के बच्चे, 16-15 ईयर्स के बच्चे एक क्लास में रहते हैं। सो on the basis of age, on the basis of in our society, on the basis of casteism, there is a group on in, if you take example of the our country, that they are divided on the basis of direction, east west north south direction. Okay, plants are also classified according to their area, their habitat. ठीक है, just like animals are also divided, vertebrates, invertebrates. ठीक है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है ताकि उनका नेमिंग इजीली हो सके, अप्रोप्रिएटली हो सके। सो व्हाट्स द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? क्यों जरूरत है क्लासिफिकेशन का? इतने ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है अर्थ में। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी existing living organism in details. So we need to classify them to make it easier, ठीक है, to know about the different life forms. So it helps to understand the evolution, तो evolution of the all living life form to a large extent. So what's the importance of the classification? Importance क्या है, क्यों हम करें इसको? Importance क्या है classification का? Importance of classification, पहले तो आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्पफुल होएगा। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेशनशिप। नेक्स्ट, टू स्टडी और रिसर्च के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, स्टडी एंड रिसर्च में हेल्प करेगा। कैसे? मतलब ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कंजर्वेशन में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं? बेसिस क्या है, किस तरीके से, किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस क्या है, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो? पहला तो उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मींस उसके आउटर लुक्स को देखो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे बाहर से कि कैसा है वो, उसका लीव्स कैसे है, फ्लावर्स कैसे है, अगर वो एनिमल है तो उसका बोन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका आप फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख लिए, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखो, उसका जेनेटिक मेकअप देखो, डीएनए कैसा है, उसका जीन्स कैसे है, जेनेटिक मेकअप देखा जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स कैसे है, ताकि वो सिमिलैरिटीज देखना है आपस में, जो ग्रुप मिल रहा है देन दे आर क्लासिफाइड इन अस ग्रुप। फिर उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे, उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाए। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर्स के होंगे तो एक ग्रुप में होंगे। ठीक है, सो इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन को कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर क्लासिफिकेशन हम उनको नेक्स्ट हम समराइज करते हैं क्या पढ़े। तो पहले हम क्या किए, पहले हम आइडेंटिफाई किए ऑर्गेनिजम्स को, देन उसका नॉमेनक्लेचर किए, देन नॉमेनक्लेचर करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन किए। क्लासिफिकेशन में क्या किए कि हम ग्रुप किए, ग्रुपिंग हुआ एक कन्वीनियंट कैटेगरीज में। ठीक है, तो वो जो कैटेगरी में हम उनको ग्रुप किए, दैट कैटेगरी इज साइंटिफिकली टर्म्ड एज द टैक्सा। So here it is written taxa, scientific term for categories at different level. ठीक है, टैक्सा क्या है? टैक्सा कुछ नहीं, कैटेगरीज को ही हम टैक्सा बोलते हैं। तो एग्जांपल्स क्या है?
एग्जाम्पल्स मान लो कि डॉग्स का जितने वैरायटी ऑफ डॉग्स है, कैट्स है, वाइट, सब सब ऑल आर इन टैक्सा। जैसे डॉग्स का एक टैक्सा हुआ, प्लांट्स का, ठीक है, एक टैक्सा होता है सबका एक एक। सो इसी तरीके का टैक्सोनॉमी एक टर्म है जो कि क्लासिफिकेशन हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इनटू डिफरेंट टैक्सा में बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। What is the systematics? Systematics is the branch of study which deals with the systematic arrangement of organisms and relationship among them. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट, कैसे उसका टेक्सोनोमिकली हायरार्की क्या है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जानेंगे, ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में। So now come to the taxonomy hierarchy. What is this overall taxonomic arrangement? Together constitute the taxonomic hierarchy. So it includes species, genus, family, order, class, phylum, division or kingdom. ठीक है, this from. So what is this species? Species is the morphologically similar और interbreeding कर सकते हैं, जिसमें हाईएस्ट सिमिलैरिटी होता है स्पीसीज में। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज हुआ, डॉग एक स्पीसीज, कैट एक स्पीसीज, ठीक है, सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज है और दोनों आपस में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन है तो, ठीक है, इंटरब्रीडिंग देखो लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज द जीनस, द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। Next slide I will discuss with the examples, okay. So family क्या है कि एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, जेनस को ही हम प्लूरल में जेनेरा बोल रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या है, क्लोज रिलेटेड फैमिलीज को हम बोलते हैं। क्लास क्या है, रिलेटेड ऑर्डर्स, सेम डिवीजन एंड किंगडम। सो कैसे याद करोगे इसको, एक ऐसे बताते हैं जैसे तुम एक उनको प्रॉपरली याद कर पाओगे, ये हायरार्की को कैसे याद कर पाओगे। लेट मी यूज माय पेन, ओके। सो आप एक इसके लिए ऐसे शॉर्टकट ले लो, किंग, किंगडम के लिए हो गया किंग, ठीक है। फाइलम को लिखते हैं हम प्रीफर्स, और डिवीजन के लिए लिखते हैं डिनाइज, ठीक है। कुकीज, ओवर, फ्रेश, ग्रीन, स्पिनच। ये लाइन याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। किंग, के इज किंग, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, this one is the class, this is the order, this is the family, this is the genus and this one is the species, ठीक है। एक सीक्वेंस याद हो जाएगा आपको। सो हायरार्की किस तरीके से हुआ, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया नीचे से ऊपर। स्पीसीज, स्पीसीज एक सबसे मतलब आप बोलो कि उनका सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम मूव करते ऊपर, जैसे एज वी मूव हायर इन द हायरार्की, द सिमिलैरिटी कंटिन्यूज टू डिक्रीज, okay. Let's see with the example. So this is the example of the, हम स्पीसीज में देख लिए कि ह्यूमन एक स्पीसीज है, प्लांट्स एक स्पीसीज है, कैट्स, डॉग एक अनदर स्पीसीज है, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस विद देमसेल्व्स, ठीक है। दिस इज द जीनस, एग्जांपल ऑफ जीनस, ठीक है। जीनस मतलब ये फैमिली है कैनिस का, सारे में देखो जीनस नेम सेम है, कैनिस कैनिस कैनिस, ठीक है। डॉग है, वुल्फ है, जैकल है। क्या है ये जीनस में, क्या है जीनस जो, तो ये कांट रिप्रोड्यूस, क्या डॉग वुल्फ से रिप्रोड्यूस कर सकता है, नो, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। बट सिमिलैरिटी क्या है, दे आर सिमिलरली, सिमिलैरिटी लुक सिमिलरिटी है, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, और इनका क्या है, जेनेरिक नेम सेम है, देख रहे हो, जेनेरिक नेम सेम है, कैनिस सेम जेनेरिक नेम है, लेकिन जो इनका स्पीसीज नेम है, सबका स्पीसीज नेम डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज नेम है ना। सो दिस बिलोंग्स टू द कैनिस फैमिली। अनदर एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस बिलोंग्स टू द जेनिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फैमिली। फैमिली में क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच लेसर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज है, ठीक है, एज कंपेयर टू द जीनस, लेसर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज है इनमें। देखो ये कैट है, टाइगर है, लायन है, ठीक है, दे ऑल बिलोंग्स टू द फैमिली। कौन से फैमिली को बिलोंग्स करते हैं, दे बिलोंग्स टू द फैमिली, क्या नाम इस फैमिली का,
Felidae, Felidae family को belong करते हैं. They all comes in one family. In the next slide, we will see this is the order. Next, after family, there is the order. Order is the group of closely related families, ठीक है, which have few similar characters. All are flesh-eating animals. ऑर्डर के बाद हम आते हैं क्लास में. तो क्लास क्या होता है? क्लास इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स विच हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. जैसे हो गया लायन है, टाइगर है, ल्यूपार्ड है, ठीक है. दे ऑल आर कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ. एक कैरेक्टर्स है ना सिमिलर की, गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है. उसके बाद आता है फाइलम. फाइलम क्या होता है? फाइलम एनिमल्स में फाइलम बोलते हैं एंड प्लांट्स में इसको डिवीजन बोला जाता है. तो फाइलम में क्या हुआ? तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस ऑफ एनिमल्स विद सम कॉमन फीचर्स होते हैं उनमें, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हुआ, वर्टिबल कॉलम को नोटोकॉर्ड बोला जाता है, ठीक है. डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि बाद में मॉडिफाइड हो जाता है तुम्हारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में. ये सारे एग्जांपल्स हुए तुम्हारा फाइलम का. फाइलम में बहुत सारे और डाटा फाइलम हो गया जो कि जिसमें इंक्लूड करते हैं आप लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, एलिफेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट इसी को अगर हम फाइलम को ही हम प्लांट्स में बोलेंगे तो ये आएगा तुम्हारा द फ्लावरिंग प्लांट्स हुआ, एक फाइलम में आता है, ठीक है, एक डिवीजन में आता है, ठीक है. नेक्स्ट फाइलम और डिवीजन के बाद आ गया किंगडम, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक है. किंगडम में क्या आता है? दो किंगडम होते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया. इस तरीके का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिया गया सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को. ओके, दिस इज द टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. और ये एक पूरा चार्ट है जिसमें कि सारे का नाम्स दिया गया और उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया. जैसे ह्यूमंस का हमारा नाम क्या है? वो होमोसेपियंस हो गया. स्पीसीज क्या हो गया? सेपियंस हो गया. जीनस हो गया होमो. कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं? होमोनीरिया. ऑर्डर क्या है? प्राइमाटा. क्लास फैमिलिया. कौन से फाइलम में बिलोंग करते हैं? कॉर्डाटा फाइलम्स को बिलोंग करते हैं. इसी तरीके से इस तरीके सारे स्पीसीज का अपना टैक्सोनॉमिकली डिवाइडेशन किया गया कैटेगरीज में, ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड. अगर अच्छा लगे तो आगे इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.